wait, then we are going to start. Parents, till that time, please just write whatever questions you have in a chat box. Whatever doubt, whatever question you have, you can write in a chat box. Okay, parents, let's start our session. So first of all, I would like to welcome you all on 5th day of 5-day play therapy technique course. So what are the things we are going to see today? First, we will have some follow-up and overview. Then we will go for question answer. After that, we will discuss about the image which I had shared yesterday. And then I'm going to tell you some surprise. I'm going to give you some surprise. So let's start our day. Hope you have done all activity I asked to do it till yesterday, and also I am very confident that you had started working on that anger management map and road map, your full development map, worksheets, sheets you had already tried. So let's start our session. Now I'm getting lots of questions, so I will just take my question first. My child is 14 years old, intelligent but no focus, writing does not like. Need away push. He listened to his father but not me. Okay. Parent, what happened? First thing, there's a 2-3 doubt you have in this question. First, if your child does not like writing, give him some other way to write. For example, that many times I am told, play with him, teacher. That time he is a teacher, and that time he's supposed to write in a blackboard, use the blackboard, whiteboard. So they love to write there because that time they are a teacher. So you can play with a teacher, or you can do second thing, you can just try to make a competition, make a healthy competition with your child. Who is going to write first? Or maybe if you have anyone of same age, you can do the same thing with the child also. So this is going to help him to write, make him an interest in the writing. And if you want that he learn many things, so just try to do with some activities, because he don't like to do writing work. So for that you can use some activities. With the help of activities, you can make understand the concept. Next thing, we need to push our child. You told in that question. See, we all need some push-up, something which help us to do something. For that, you need some goal. Just so try to first make a goal for your child. Ask him what he wants to become. Whatever his dream, whatever thing he wants to do, just ask him. So whenever he is going to tell you the things, then focus him. Just tell him, अच्छा तुम्हें ये बनना है. For example, अगर वो बोल रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे एडवोकेटर बनना है, जो बनना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है? ऑफिसर्स बनना है. जो बनना है उसके लिए तुम्हें ये चीजें करनी होगी. तो उससे पहले गोल दिखाओ, और वो गोल दिखा के ही आप उसे फोर्स कर सकते हो उसे अचीव करने के लिए. So first thing, just try to make a goal for your child. जो भी उसका इंटरेस्टिंग चीज हो. अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे सुपरमैन बनना है, तो ओके डन, आप उसे सुपरमैन बनाने के लिए बोलो, लेकिन उसके लिए भी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप अपने पावर का यूज कैसे करोगे, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सो जस्ट ट्राई, आप उसे कोई एक गोल दीजिए. एंड नेक्स्ट, यू सेड दैट your child always listens to father, not you. For that, I would like to say
कि आपको घर पे कुछ रूल्स बनाने होंगे। अगर आप जो चीजें आप कहना चाहते हैं, जो चीजें आप करना चाहते हैं, जो चीजें आपने हाँ कही है, वही सेम चीज आपके हस्बैंड भी हाँ कहे। और कई बार बच्चे हमसे क्यों नहीं डरते, हमारी बात क्यों नहीं सुनते, बिकॉज हमने वो उनको वो ऑप्शन ही नहीं दिया होता। हम हमेशा ये कहते हैं पेरेंट बच्चे को कि काम कर लो वरना पापा को मैं बोल दूंगी, तुम ये चीजें नहीं कर रहे हो मैं पापा को बोल दूंगी। सो क्या होता है, हमने सारी अथॉरिटी पापा को दे रखी होती है। तो जब हमने सारी अथॉरिटी पापा को दे रखी होती है तो बच्चा हमें सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता, वो हमें सुनना ही नहीं चाहता, बिकॉज उसे पता है कि मम्मा के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मम्मा मुझे कुछ नहीं कर सकती। सो हमें हमारी अथॉरिटी हमने अपने हाथ से खुद से छीनी, बिकॉज हमने पूरा फोकस उसको पापा पे दिखाया, क्योंकि पापा एक ऐसी चीज है, पापा एक ऐसे बंदे हैं जिनकी घर पे चलती है। सो पेरेंट जब भी आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा हो, स्पेशली आई एम टेलिंग टू यू मदर्स, अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा हो तो आप उसके पनिशमेंट देने के लिए पापा का वेट मत करिए। Just take an action whatever you want and just stick out in that. Whatever you are saying, उस पे आपने जो कहा उस चीज को आप करके दिखाइए। कई बार सिर्फ हम कहने के लिए कहते हैं कि बच्चा अगर आपने काम नहीं किया तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपने काम नहीं किया तो आपको हॉस्टल भेज देंगे। ये सारी चीजें सिर्फ हम डराने के लिए कहते हैं। सो आप ऐसा कुछ मत कहिए जो आप कर नहीं सकते। नेक्स्ट, I did not understand the question. Son, age is 6 years 9 months, studying in a class 1. But what is your problem? Just write it again. Okay. I want to improve my memory. Your child, I really don't understand. But if you want to improve your child memory, for that there are many activities you should do, and that answer you will get soon, how you are able to improve your child memory. Same thing you can try with yourself also. Okay, my son is thinking of something else while class, not interested in writing and reading after the class. See, many times I told, again I am saying कि अगर हम बच्चों को हमने एकेडमिक इतना ज्यादा फोर्सफुली, इतना ऐसा प्रेशराइज वाली चीज बनाई है जिससे बच्चे उसे हमेशा भागना चाहते हैं, तो जितना टाइम क्लास का टाइम होता है बच्चा पढ़ लेता है, उसके बाद बच्चे को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, बिकॉज बच्चा सोचता है ये एक बर्डन है। तो आपको उसको बर्डन की जगह इंटरेस्टिंग बनाना होगा। आपका बच्चा क्लास 1 में है, सो आप उसके लिए जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आप, फॉर एग्जांपल मैं आपका ईवीएस का लेती हूँ, ईवीएस में आता है बॉडी पार्ट, सो आप उसे बॉडी पार्ट को किस तरीके से प्रोजेक्ट के थ्रू करवा सकते हैं, वीडियोस दिखा के करा सकते हैं, आप वो देखिए। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग आता है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स सी कि हमें कितनी चीजें लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग मिल रही है। जो आप उसे पढ़ाना चाहते हैं, जो आप उसे समझाना चाहते हैं, वो एक्टिविटी के थ्रू कराएंगे, प्ले के थ्रू कराएंगे, तो आपके बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। हम ज्यादातर जो पढ़ाते हैं हम लोग प्रेशराइज करके पढ़ाते हैं, ओके ये इतना लिखना है, ये उतना करना है। आप बच्चे को फ्री दे दीजिए, ओके हमने आज ये देखा, आज हम फॉर एग्जांपल आप लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग अगर कर रहे हैं, आप वॉक पे गए और आपने देखा ये चीजें है, अब आप मुझे लिस्ट बना के दीजिए आपने क्या लिविंग थिंग देखी और क्या नॉन लिविंग थिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल बिकॉज यू टोल्ड मी योर चाइल्ड इज इन क्लास 1, so that thing you can do. So just try to make study interesting, and that thing only parents can do. Only parents can make study interesting, because right now we have lots of options. We can see the video, we can do the projects. This thing we can do with our child. So just try this. Then again I will say, then you are told me that he don't have interest in reading. Okay, don't give the books, academics books for reading. उसके सिवाय की बुक्स लाके दीजिए उसे, जिसमें उसको इंटरेस्ट आए। जो भी उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है उसकी बुक्स लाके दीजिए उसे, तो वो उसको रीड करना उसको आना चाहिए, उसको एक बार रीडिंग में इंटरेस्ट आना चाहिए। Okay, let's move to next question.
Okay, and your child is left-handed. See, it's not a issue. If your child is left-handed or right-handed, not a issue. बच्चा कितने creatively कर सकता है वो, that is more important. Okay, my child is very stubborn and he always fight everyone. He is just 7.5 years old. Okay, for that first thing I would like to ask or I will like to know that आपके हमारा बच्चा जब स्टबर्न होता है तो वो स्टबर्न, उसका वो जिद उसने हमसे सीखी हो. Because whenever they ask something, we are giving them. Or if we are saying no, after when they are shouting, they are throwing the things, we are giving them. मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा है, अगर बच्चे ने फोन मांगा और बच्चा चिल्ला रहा है या रो रहा है, पहले तो उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद में अगर बच्चे ने चिल्लाना रोना शुरू किया तो पेरेंट्स ने अपना फोन उसको दे दिया. So child understand that thing. If I need a phone for that, I supposed to show this whole thing. So first thing I would like to say you that stop whatever thing you had say, just follow that instruction. If you said you are not going to get a phone means no, no means no. You should not give that phone then. If you said yes for anything, then do it. So just stick on your word, then the child is able to understand what he or she is supposed to do. Second thing, for stubborn child, how to handle them. There is some technique which you are supposed to use, which I am going to tell you in short. My child always like to eat pizza. Okay, parent, if your child is like to eat pizza, so this thing you can use as a reward. अगर आप चाहते हैं कि आपको पिज्जा खाने को मिले, अगर आप वीक में या पर डे जो भी कर रहे हैं, तो पहले तो आप उसे एज अ रिवॉर्ड यूज करना शुरू करिए कि आपका बच्चे को अपना जो भी उसका काम है वो ये चीजें कंफर्टेबली या सही तरीके से करता है तो उसे पिज्जा मिलेगा. Secondly, try to use or ignore the pizza when you are making. Just try to make a pizza at home if possible. So you can make a healthy pizza. आप बच्चे को रोटी पिज्जा टाइप से खिला सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे चीज को चेंज कर सकते हैं. मैदा की जगह आटा हो सकता है, वेजीज हो सकते हैं. सो इस टाइप से आपका वो पिज्जा हेल्दी भी हो जाएगा और आप जो अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं वो एक बार आप उसके साथ ट्राई भी कर सकते हैं. जो भी है, तो आप अगर अपना होमवर्क टाइम पे फिनिश कर लेते हो तो आपको पिज्जा मिलेगा. सो जस्ट यूज दिस थिंग एज अ पॉजिटिव वे. My child always want gadget, phone. Okay, for this, what you can do? First thing, again I will say, फोन हमने उनको देना शुरू किया. दिस टाइम कोविड टाइम आई कैन अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स ने मैक्सिमम पेरेंट्स ने अपने बच्चे को फोन दिया. मे बी सम विल से कि मैम मैंने तो स्कूल का जो हमारी ओबीसी क्लासेस चल रही थी या जो वीडियोस आ रहे थे हमने उसके लिए दिया. बट कई बार हम लोग अपने बच्चे को बिजी करने के लिए फोन देते हैं. सो बच्चों को बिजी करने के लिए फोन की जगह आप उनकी दूसरी एक्टिविटीज दीजिए. आप उन्हें दूसरे एक्टिविटीज बताइए जो उनका इंटरेस्ट हो, जिसमें उनको इंटरेस्ट हो. आप उन्हें वो एक्टिविटीज दीजिए जिससे वो उसे खेले और फोन से दूर रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं. सो आई एम जस्ट यूजिंग दैट फोन. सो आप बच्चों को इस तरीके से बिजी, आप सिर्फ पढ़ा करके बिजी रखेंगे तो बच्चा is not ready to do. He is not ready to write and study. So what you can do? Make the study interesting. Do some activities. When you are ready to do some activities, the child is going to stop seeing the mobile. आपको अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा जिससे वो अपना जो बच्चा है वो टाइम
आपके साथ स्पेंड करें, ना कि वीडियोस और मोबाइल पे सारी चीजें देखें. Okay, parents, you can write the question. So before that, we will just move to forward. I'm just going to talk about the image. तब तक आप जितने भी questions हैं आप लिख सकते हैं. और अगर कोई question रह जाता है मुझसे, so don't worry, आप मुझे वापस से मेरे WhatsApp पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आपके आंसर्स दे दूँगी. Okay, now, sorry. Yesterday, I just give one picture to you and ask what you are seeing in that. उस picture से आपको क्या दिखाई दे? So many parents reply me that they are seeing a young lady, they are seeing an old lady. Some are saying they are seeing the father. So many things you all said me. But I will tell you one thing, that none of you are wrong. Yes, none of you are wrong. Why? Because आप जो भी देखे, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें. किसी को वो यंग लेडी नजर आई, किसी को वो ओल्ड लेडी नजर आई. क्यों? क्योंकि उनका देखने का नजरिया अलग था. मेरा देखने का नजरिया अलग हो सकता है, आपका देखने का नजरिया अलग हो सकता है. ये एक्टिविटी मैंने आपको क्यों दी? ये एक्टिविटी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि कई पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं समझ पा रहा. बच्चे ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझ पा रहे. वो गलत है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से क्या बोल रहे हैं. या पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरे बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए कितना सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो हियर यू बोथ आर राउट, यू बोथ आर राइट. बट the thing what happened is here कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे. अगर आप अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं तो आपको उसके नजरिए को समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसके जगह से वो चीज देखनी होगी, जिससे आपको वो प्रॉब्लम उसके लेवल पे जाके आप जब समझेंगे तब आपको बहुत इजी लगेगी. आप उसे समझ पाएंगे और आप बहुत ही इजीली उसका सोल्यूशन दे पाएंगे. तो जब भी कोई सिचुएशन आप अपने बच्चे को समझा रहे हो तो आई सजेस्ट आप उसके कंफर्ट जोन पे जाके समझाइए, उसके नजरिए से उसको समझाइए, उसके व्यू से उसे समझाइए. तो आप बहुत ही इजीली अपने बच्चे को समझा पाएंगे और आपका बच्चा वो चीज करने के लिए मान जाएगा. Parents, I really want to tell you one story. I'm just going to take I think 2-3 minutes only. This is very important story. So एक बार एक बंदा इंटरव्यू के लिए जा रहा है. जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है, वो वहां पे पहुंचता है, उसकी जस्ट अभी एजुकेशन फिनिश हुई होती है, उसके पास एक्सपीरियंस किसी चीज का नहीं होता. तो वो थोड़ा नर्वस होता है कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं बहुत अच्छी कंपनी में जा रहा हूँ. वो वहां पहुंचता है, वो जैसे ही जाता है गेट के पास जब पहुंचता है तो वो देखता है गेट आधा खुला आधा बंद होता है. वो अंदर जाता है और गेट को क्लोज करता है. फिर वो ऑफिस की तरफ जाता है. रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है उसको बोलता है कि मैं इंटरव्यू के लिए आया. वो उसे एक जगह पे जहाँ पे बाकी लोग हैं वहां पे वो बैठाती है. जब वो वहां पे बैठता है तो उसे पता चलता है कि वो जो बाकी के लोग हैं वो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है. वो वहां पे बैठे बैठे मैगजीन के कॉर्नर पे देखता है. जब वो मैगजीन के कॉर्नर पे देखता है तब वहां पे जो बुक्स रखी होती है वो उल्टी सीधी रखी होती है, प्रॉपर तरीके से नहीं होती. सो वो मैगजीन की बुक्स में को एकदम प्रॉपर से रखता है और उसमें से एक बुक लेता है. उसके बाद उसने साइड में देखा एक पेन होल्डर पड़ा होता है जिसमें पेन की जो कप होते हैं वो ऐसे ही बिना बंद किए खुले हुए पड़े रहते हैं. तो वो उनको अच्छे से बंद करके वहां पे रखता है. थोड़े टाइम के बाद उसका नंबर आता है तो वो वहां पे जाता है. जब वो जा रहा होता है तब वो रूम में देखता है कि एक फैन और लाइट चालू है. एक रूम में फैन और लाइट चालू है. वो वहां पे जाके फैन और लाइट बंद करता है. उसके बाद वो
जहाँ पे इंटरव्यू के पैनल सारे बैठे होते हैं, वो वहां पे जाता है। बाहर डोर मैट जो लगी होती है वो थोड़ी टेढ़ी है, तो उसे वो सीधा करते हुए मैं आई कमिट करके अंदर पहुंचता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है, जो पैनलिस्ट है उसे कहते हैं यू आर सिलेक्टेड फॉर अ जॉब। विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन दे आर सेइंग हिम यू आर सिलेक्टेड फॉर अ जॉब। एनी आइडिया व्हाई ही वाज सिलेक्टेड? कैन एनीबडी टेल मी? यस, राइट इन अ चैट बॉक्स। Yes, yes, perfect, you are right. He was selected because he did the whole thing perfectly. जब वो पैनलिस्ट उससे वो पूछता है कि मुझे कैसे सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज मेरा तो एक्सपीरियंस भी बहुत कम था, तो मुझे कैसे सिलेक्ट कर लिया गया? तो वो उसे बोलते हैं आप जिस तरीके से ऑर्गेनाइज थे, जिस तरीके से आपने चीजें की, आपका इंटरव्यू यहाँ पे आने से शुरू नहीं हुआ, आपका इंटरव्यू यहाँ पे आके खत्म हुआ। सो आपने जिस अच्छे तरीके से, आप जैसे आए, आपने गेट क्लोज किया, आपने बुक्स प्रॉपरली रखी, आपने पेन अच्छे से रखा, लाइट फैन बंद किया, ये सारी चीजें हमने देखी। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करे, जो चीजें आप में है। नॉलेज और एक्सपीरियंस तो वर्क करके मिल जाए। सो दैट टाइम ही इज वेरी थैंकफुल टू हिज पेरेंट्स, बिकॉज जब उसके पेरेंट्स उसको ये सारी चीजें सिखा रहे थे, तब उसे ये चीजें पसंद नहीं आती थी। उसे काफी बेकार लगता था कि क्यों मुझे मेरी चीजें हर जगह पे रखनी है। लेकिन उसको उस चीज की वैल्यू उसे उस दिन समझ में। He was very thankful to his parents. पेरेंट, ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके कुछ अलग करे, कुछ डिफरेंट करे। वो सारी चीजें हमें उसे बचपन से सिखानी है। आपको क्या लगता है, ये जो आईपीएस की एग्जाम होती है, जो इंटरव्यूज होते हैं, उसमें सिर्फ आपका नॉलेज देखा जाता है? नहीं, उसके अंदर, पैनलिस्ट के अंदर जब इंटरव्यू होता है, आपकी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आपका लर्निंग मेथड देखा जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल देखा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखा जाता है। ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, उसके बाद आपको सिलेक्ट करते हैं। एंड बिलीव मी, इसमें से कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर हो, सॉरी, बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग स्किल्स के अंदर हो, तो आपको वो अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। आपको ये सारी चीजें अगर आप अभी से डेवलप करेंगे तो ही आपके बच्चे के अंदर वो सारी चीजें डेवलप होगी। एंगर मैनेजमेंट, जो मैंने आपको अभी समझाया, मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे का एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है, लेकिन एंगर आता क्यों है, वो रीजन जानना बहुत जरूरी है। आप वो रीजन कैसे जानेंगे? आपका बच्चा, मुझे यहाँ पे एक पेरेंट का मैसेज था कि मेरा बच्चा पिज्जा मांग रहा है। सो आप ऐसा क्या करें कि आपका बच्चा हेल्दी फूड मांगे, वो बहुत जरूरी है। वो देखना, वो समझना, आप कैसे उसे हेल्दी फूड खिलाने के लिए इंस्पायर कर सकते हो। आप अपने बच्चे को कैसे क्रिएटिव बना सकते हो, आप अपने बच्चों को कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा सकते हो, बिकॉज ये सारी जो चीजें हैं ये लाइफ लॉन्ग है। अगर आपका बच्चा अभी ये सब सीख जाता है, बिलीव मी, वो अपने लाइफ में जो भी करेगा वो बहुत ही सुपर करेगा। जो उसके लाइफ का गोल है वो इजीली अचीव कर पाएगा, बिकॉज ऑफ whatever the thing, whatever the skills you are giving him. अगर उसे डिसीजन मेकिंग आ गई तो वो सही डिसीजन ले पाएगा। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख गया तो वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व कर पाएगा। और ये सारी चीजें हम अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है पेरेंट। ये चीजें अगर हम लोग कई बार सोचते हैं अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी उसे डिसीजन मेकिंग स्किल की क्या जरूरत है, मेरा बच्चा सिर्फ 6 ईयर का है, 7 ईयर्स का है और मैं भी 8 ईयर्स का है, अभी तो बहुत टाइम है, हम उसे तब सिखा दें। पेरेंट्स, वो टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कब चला जाएगा, क्योंकि चीजें सीखने में
सही चीजें सीखने में बहुत टाइम लगता है। आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी अपने बच्चे की, और ऐसी हैबिट जो बच्चा करना चाहे, ऐसी चीजें जो बच्चा खुशी से करे। क्योंकि कई चीजें हम चाहते हैं, कई हैबिट्स हैं, हमें पता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं करवा पाते बिकॉज थोड़ी सी वो टफ हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये सारी हैबिट ऐसे सिखाऊंगी कि आपका बच्चा खुशी खुशी करना चाहिए। He will love to do that thing। और ये सारी चीजें आपका बच्चा खेलते हुए सीख लेगा। जी हाँ, खेलते हुए। आपको बिल्कुल भी उसे बर्डन देना ही नहीं पड़ेगा। सो ये सारी चीजें आपको क्या क्या है, कैसे कैसे सिखानी है, सो लेट्स सी। ओके, सो इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया, ब्लूप्रिंट टू मेक योर चाइल्ड जीनियस। इसके अंदर मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे रही हूँ, आपके बच्चे का फ्यूचर का ब्लूप्रिंट दे रही हूँ। वो कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स सही करे, अपने आप को कैसे क्रिएटिव बनाए, कैसे अपनी थिंकिंग इंप्रूव करे बिना किसी प्रेशर के। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगी। तो इसके अंदर क्या है, लेट्स सी। इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट है, जिसके अंदर फर्स्ट सेगमेंट है रेजिंग अ थिंकर, सेकेंड सेगमेंट है SQ, EQ, IQ, देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आजकल मुझे कई बार क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के, जैसे आज भी मैंने देखा कि मेरा बच्चा मुझे सुनता नहीं। सो आप अपने बच्चे के साथ ऐसे कैसे रिलेशनशिप डेवलप करें कि आपका बच्चा आपको सुने और समझे। वो सारी चीजें, सिबलिंग जो हमारी फाइट्स होती है, जो बच्चे की सिबलिंग फाइट्स होती है, उसे कैसे चेंज करें, उनके बीच में कैसे बॉन्ड बनाए, वो आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर पता चलेगा। गैजेट डिटॉक्स, दैट इज वेरी डीप। हमारे आजकल के बच्चों को इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल सिर्फ और सिर्फ गैजेट में बिजी है। वो अपनी एनर्जी सिर्फ गैजेट में यूज कर रहे हैं। सो हम उनकी एनर्जी कैसे चैनलाइज करें, कैसे उन्हें डिटॉक्स करें गैजेट से, वो इसमें आपको पता चलेगा। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो हमारे अंदर जो है, जो 8 इंटेलिजेंसी है, जो कि मैंने आपको अपने कोर्स में बताई है। किसी में कुछ कम हो सकती है, किसी में कुछ ज्यादा हो सकती है। तो जिसमें जो कम है, अगर किसी बच्चे में कोई मल्टीपल इंटेलिजेंसी कम है, तो उसको कैसे बढ़ाए, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंसी आप आराम से बढ़ा सकते हैं अपने बच्चे की। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज करनी होगी, उसे डेवलप करना होगा। सो वो आप डेवलप कर सकते हैं। तो वो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो आपको इसमें पता चलेगा। मोरल वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सब जानते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को एक मोरल वैल्यू दें, लेकिन वो मोरल वैल्यू हम अपने बच्चे को कैसे दें, कैसे समझाएं, क्या करें, वो हमें नहीं पता चलता। सो वो हम कैसे अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, एंड दिस ऑल्सो बाय गेम, बिकॉज बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। वो खेलते खेलते ये सारी चीजें सीख लेंगे। सो लेट्स सी इन डिटेल कि आपको क्या क्या चीजें मिलेगी रेजिंग अ थिंकर में। रेजिंग अ थिंकर में सबसे पहले आपको आपकी पेरेंटिंग स्टाइल पता चलेगी। सी, अगर आप अपने बच्चे के लिए जो गोल सोचा है, आप वो अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पेरेंटिंग स्टाइल पता होना और चेंज करना बहुत जरूरी है। आप कौन से जगह पे, सी कई पेरेंट अपने पेरेंट की पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। जो उनके पेरेंट्स ने किया था वो सेम चीज वो अपने बच्चे के साथ करते हैं। तो इधर कुछ भी गलत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पेरेंट ने आपको गलत तरीके से आपकी पेरेंटिंग की थी तो आप वो फॉलो मत करिए। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। दे डिड अ वेरी गुड जॉब, व्हिच आई कैन सी दैट, बिकॉज आप सब लोग आज अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए उनकी पेरेंटिंग स्टाइल, आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्होंने आपकी पेरेंटिंग इस तरीके से की कि आज आप अपने बच्चों से इतना ज्यादा अटैच है।
लेकिन यहाँ पे क्या चीज चेंज करनी है, क्यों चेंज करना है, उसका रीजन है कि आपके बच्चे को पता चले आपकी जो आपके टाइम पे आपके पेरेंट्स ने पेरेंटिंग की थी वो डिफरेंट थी, बिकॉज जनरेशन गैप। सो आप वही चीज फॉलो नहीं कर सकते, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, कई चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कई चीजें हमारे टाइम पे नहीं थी जब हम बच्चे थे और आज है। सो हमें वो चीजें सीखनी है। अगर हमें अपने बच्चे के साथ डील करना है तो हमें अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करना होगा। देन आप सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी पावर है, आप उस पावर को पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हो? एंड दिस थिंग ऑल्सो बाय गेम। बच्चों की को खेलते खेलते आपको उसका जो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है उसको एक्टिवेट करना है, वो आपको इसमें पता चलेगा। आपके चाइल्ड को आप क्रिएटिव कैसे बना सकते हो वो आपको इसमें पता चलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप अपने बच्चे की कैसे डेवलप कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग स्किल आप अपने बच्चे की कैसे डेवलप कर सकते हो, ये सारे टेक्निक्स आपको रेजिंग अ थिंकर में पता चलेगा। ये 6 दिन का प्रोग्राम होगा। नाउ मैंने आपको बताया कि आप अपने बच्चे का एक्सक्यूज मी, थैंक यू। सो मैंने आपको आपके बच्चे का एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है वो बताया। आपने वो टेक्निक स्टार्ट भी कर दी और आपके बच्चे में पॉजिटिवली कई पेरेंट्स ने मुझे बोला कि चेंज भी नजर आए। सी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि वो जो आपने स्टार्ट किया है वो सिर्फ थोड़े टाइम करके आप बंद कर देंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चे में वो थोड़ा टाइम पे चेंज आया हो उसके बाद नहीं भी आएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आपको वो मैप जो मैंने आपको दिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो एक्टिविटीज मैंने आपको दी है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी आपके बच्चे का एंगर मैनेजमेंट करने के लिए। बट आप अपने बच्चे के एंगर का रीजन पता कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने बच्चे का एंगर का रीजन पता कर लिए तो मैनेज करने की प्रॉब्लम ही नहीं ना। आपने उस प्रॉब्लम की जड़ पे पहुंच गए, बस आपको वो सॉल्व करना है। सो आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे वो आपको रीजन बिहाइंड एंगर में पता चलेगा। ये 6 दिन के कोर्स के बाद आपको वापस से वेबिनार, एक लाइव वेबिनार होगा जहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके 2 पार्ट है। एक रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे के साथ ऐसे अपना रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं कि आपके अंदर जो आप दोनों का बॉन्ड हो वो इतना सुपर्ब हो कि आप दोनों एक दूसरे को इजीली सारी चीजें समझा सकते। सी पेरेंट, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे ना तो उसके सक्सेसफुल होने में सबसे इम्पोर्टेंट रीजन पेरेंट होते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट उसको समझते हैं। उसके पेरेंट उसे बचपन में उस टाइप की पेरेंटिंग देते हैं कि वो सारी चीजें अचीव कर सके। जैसे कि आपको मैंने अपना एग्जांपल दिया था, आई एम अ डिस्लेक्सिक चाइल्ड एंड नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग अबाउट दिस होल थिंग। सो यहाँ पे मेरे पेरेंट की पेरेंटिंग स्टाइल थी जिसने मुझे यहाँ तक खड़ा किया। सो आप अगर चाहते हो आप अपने बच्चे को उसके मुकाम तक पहुंचाओ तो आपको उनके साथ अपना रिलेशनशिप देखना बहुत जरूरी है, वो मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन, तो पिलर्स, वो सारे मजबूत होना जरूरी है। सो आपका रिलेशनशिप वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है आपके बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए। सो आपको कैसे और इम्प्रूव करें, एक अच्छा बॉन्ड बनाए, वो भी अगेन आई एम टेलिंग खेलते खेलते वो आपको इसके अंदर पता चलेगा। रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स, कई पेरेंट्स की मुझे क्वेरी आती है कि मेरे बच्चे दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, एक दूसरे के से बात नहीं करते।
सो आप या बात करते तो हर बात में उनका झगड़ा होता है, हर बात में मुझे मेरे बच्चे यही कहते हैं कि आप उससे ज्यादा प्यार करते हो, आप उससे ज्यादा प्यार करते हो। सो आप ये जो फाइट है उसे कैसे रोके, एक दूसरे को उनके अंदर का जो प्यार है वो एक दूसरे के लिए कैसे पूरा फिल करे, वो आपको इसके अंदर पता चलेगा। उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंसी, जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसी है जो कि मैंने आपको अपने कोर्स में बताई है, सब इंसान के अंदर वो इंटेलिजेंसी होती है, बट किसी के अंदर कुछ ज्यादा, किसी के अंदर कुछ कम। कोई बहुत अच्छा ऑडिटरी होता है तो कोई बहुत अच्छा विजुअल होता है, कोई बहुत अच्छा मैथमेटिशियन होता है तो कोई बहुत अच्छा सोशल स्किल्स किसी में होते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। ये सारी चीजें अगर आपके बच्चे में कोई चीज कम, अगर वो विजुअल में कम हो, तो आप कैसे उसका विजुअल इंप्रूव करें वो आपको पता चलेगा इस सेगमेंट में। और ये सारी चीजें एक्टिविटी के थ्रू, देयर इज नो लेक्चर पेरेंट्स, देयर इज नो लेक्चर, whole thing with activities. I'm going to give you the activity which you have to follow with your child, you have to do with your child, and you are going to see the change. Next, EQ, IQ, SQ. हमारा एक पर्सनालिटी बनने में सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 सेगमेंट होते हैं वो होता है EQ, IQ, SQ, और ये डेवलप सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। सो आप अपने बच्चे का EQ, IQ, SQ कैसे डेवलप कर सकते हैं जिससे वो अपने लाइफ के सारे गोल अचीव कर सके, वो आपको इस दिन पता चलेगा, इस सेगमेंट के अंदर पता चलेगा। ये 3 दिन का प्रोग्राम। देन नेक्स्ट, गैजेट डिटॉक्स, जो कि मैक्सिमम पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मेरे बच्चा सिर्फ और सिर्फ फोन पे रहता है, मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ टीवी देखता है, पढ़ने नहीं बैठता या बैठती। तो हम उसको कैसे उसका वो गैजेट डिटॉक्स करें, हम उसको अंदर कैसे उस गैजेट से उसे खुशी खुशी दूर करें। सी, डांट के मार के आप बहुत ही इजीली इसको चुप करा देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपसे छुप के वो बच्चा वही काम करता है। जहां मौका मिला नहीं, मम्मी सो रही है या पापा सो रहे, मोबाइल ले, घर पे गेस्ट आए, मम्मी पापा गेस्ट के साथ बिजी है, फोन ले ली। सो दे नो मेनी थिंग्स हाउ टू टेक योर फोन। तो ऐसा क्या करें कि बच्चा खुद से फोन ना ले। ड्रीम लग रहा है लेकिन ये चीज सच हो सकती है। ये चीज आप कैसे कर सकते हैं आपको इसके अंदर पता चलेगा, मेरे जो गैजेट वाला जो है उसके अंदर आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, हेल्दी फूड हैबिट। हम अपने बच्चे के अंदर हेल्दी फूड हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये आपको इस सेगमेंट के अंदर पता चलेगा। ये डे 1 का 1 डे का सेगमेंट। नेक्स्ट, स्टबर्न चाइल्ड। स्टबर्न चाइल्ड को आप कैसे डील करें, उनको कैसे मोटिवेट करें कि वो अपना काम करे और जो आप चाहते हैं वो करके दिखाएं। सो आपको इसके अंदर आप अपने स्टबर्न चाइल्ड को किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से उसे अपना गोल लेने के लिए अचीव कर सकते हैं, वो आपको इसके अंदर पता चलेगा। सो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली, ये सारी चीजें जो मेरा मेन कोर्स है वो है रेजिंग अ थिंकर, डेवलप EQ, SQ, IQ एंड गैजेट डिटॉक्स, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। सॉरी, ओके, ये सारी चीजें साथ में जो आपको मेरा दूसरा जो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री है मेरा स्टबर्न चाइल्ड को कैसे डील करें, फूड हैबिट, मोरल वैल्यू, ये सारी चीजें जो आपको मिल रही है। इन सारे कोर्स के अलग अलग प्राइस है। मेरा ब्लूप्रिंट का जो मेन कोर्स का प्राइस है वो 31,995 है, और जो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज DMIT टेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, जिससे आपको अपने बच्चे का कौन सा स्किल डेवलप है वो पता चलता है। आप अपने बच्चे की लर्निंग स्टाइल पता कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को किस करियर में डालें, एक आइडिया आ सकता है आपको। जो भी उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंसी में जो भी चीजें जो डेवलप नहीं हो, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी ऑडिटरी डेवलप नहीं है या इसका विजुअल डेवलप नहीं है। तो आप वो कैसे डेवलप करें वो तो मैं आपको सिखाने ही वाली एक्टिविटी में।
सो आपको अपने बच्चे का DMIT रिपोर्ट मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। इसके प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। मैं इसको लेती हूँ 799 में, ये भी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ। सो मोरल वैल्यू, फूड हैबिट, स्टबर्न चाइल्ड एंड DMIT, ये सारी चीजें, ये चारों चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। और नाउ आई नो आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि मेरे इस कोर्स की प्राइस क्या है। सो ब्लूप्रिंट और जो मेरा 31995 का कोर्स है, प्लस जो कॉम्प्लीमेंट्रीज है, ये सारे, उसके साथ आपको जो चीजें मिल रही है, उसके साथ जो मैं आपको बोनसेस देने वाली हूँ। सो लेट्स सी द बोनस। फर्स्ट बोनस, आपके बच्चे का, आपके एक बच्चे का DMIT टेस्ट फ्री। यस, यू हर्ड राइट, DMIT टेस्ट फ्री। आपके एक बच्चे का DMIT टेस्ट मैं फ्री में करके दूंगी अगर आप ये कोर्स मेरा लेते हैं तो। नेक्स्ट थिंग, अगर आपका दूसरा बच्चा है या मे बी आपके कजिन का बच्चा है या फिर आपके कोई भी रिलेटिव का बच्चा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उसका टेस्ट 50% में करवा सकते हैं, 50% ऑफ। सो जो मेरा कोर्स रहेगा उसके 50% ऑफ रहेगा। आप अपने सेकंड बच्चे का वो कोर्स आप टेस्ट करवा सकते हैं। आपको इसके अंदर ये एक सेकंड बोनस मिल रहा है। थर्ड बोनस, डूइंग अ कोर्स, आपको जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपको वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं व्हाट्सएप पे फ्री दूंगी। बिकॉज इसके अंदर आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको जहां पे भी डिफिकल्टी आ रही है, आप मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपको उनके जवाब दूंगी। नेक्स्ट, ADHD एंड LD चेकलिस्ट। मेनी टाइम्स पेरेंट आस्क मी, मैम मेरा बच्चा ADHD है, मैम मेरा बच्चा LD है, लेकिन लिटरली उनको पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चा ADHD है या नहीं, उनको LD की प्रॉब्लम है या नहीं। LD से यहाँ पे मेरा मीन है लर्निंग डिफिकल्टी। सो मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, लिटरली वो स्टैंड करते हैं वहां पे कि नहीं, वो आपको इसके अंदर पता चलेगा। वो चेकलिस्ट दूंगी, वो चेकलिस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपका बच्चा वहां पे स्टैंड करता है, तब आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप उसका एक प्लान बना सकते हैं। यू कैन कम टू मी, बट मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आपको मेरे पास ही आना है, आप किसी के भी पास जा सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पावर होती है। ADHD चाइल्ड के पास पावर है, उस पावर को वेस्ट नहीं करना है। LD चाइल्ड का कुछ और लर्निंग स्टाइल है, हमें उसके लर्निंग स्टाइल से उसे पढ़ाना है जिससे वो पढ़ ले, वो समझ ले। तो वो कैसे पढ़ाना है वो आपको कोई भी साइकोलॉजिस्ट बता सकता है। आप चाहें तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, आप चाहें तो किसी के भी पास जा सकते हैं, किसी भी साइकोलॉजिस्ट। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, आपका बच्चा क्यों इतना दौड़ता है, उसका आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट बोनस, अगर आपको फुल लाइफ टाइम मेरे पास कंसल्टेशन करवानी हो, सो उसमें 80% डिस्काउंट मिलेगा। यस, 80%। Right now my charge is 1000 rupees. So 200 rupees, only 200 rupees you have to give me. And उसके बाद आपको ये 200 rupees फीस चार्ज करने के बाद Zoom के थ्रू या पर्सनल, जैसे अगर पॉसिबल हो पर्सनल, अगर पॉसिबल हो तो पर्सनल, वरना Zoom के थ्रू हम आपका जो भी डाउट है, जो भी आपके बच्चे के लिए एक प्रोग्राम बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा ADHD है या LD है, तो अगर आपको प्रोग्राम उसके लिए बनाना है तो वो हम आपको बना के देंगे। या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ टाइम आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके बच्चे की काउंसलिंग करनी है या आपकी, आपको वो सारी चीजें 80% डिस्काउंट में मिलेगी। 80% डिस्काउंट। एंड लास्ट, आपको ये सारे वीडियोस लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे, आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा ये सब वीडियो का। आप जब चाहें, आपको जब कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यस पेरेंट्स, आई एम टेलिंग यू,
what the price, just wait. So the blueprint to make your child genius की वैल्यू है 31995 और जो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री जो मैं आपको दे रही हूँ उसकी वैल्यू है 11996 और जो 6 बोनसेस है उनकी वैल्यू है 11908। ये अप्रॉक्स हमने बोनसेस का प्राइस निकाला है। ये सारे कोर्स का प्राइस अगर मैं निकालूं तो आ जाता है 55,000। बट आपको ये ब्लूप्रिंट प्लस मेरी जो कॉम्प्लीमेंट्री है प्लस बोनसेस, ये सारे जो चीजें आपको मिलने वाली, जो मेरी रेगुलर प्राइस है वो है 999, जो ये मेरी रेगुलर प्राइस है। बट पेरेंट्स मैं इसमें भी आपको डिस्काउंट दे रही हूँ। रेगुलर जो प्राइस है उसके अंदर भी डिस्काउंट है और जो स्पेशल ऑफर है, जो स्पेशल ऑफर मेरा आप लोगों के लिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो मेरे पेरेंट्स है उनके लिए है, दैट इज 199। यस, 1999। You heard right, 1999. You will get this whole course at 1999 only. आप अपने बच्चे की लाइफ टाइम सारी प्रॉब्लम का सलूशन 1999 में पा सकते हैं। सिर्फ 1999 क्या है? अगर मैं उसे डिवाइड करूं, ये जो पूरा कोर्स है, ये 21 डेज का है। आपको 21 डेज का ये कोर्स मिलेगा। सो 21 डेज आप अपने बच्चे पे जो स्पेंड करेंगे, आपको अपने बच्चे को समझने का एक अलग नजरिया मिलेगा। आपको अपने बच्चे को उसकी जो विशेस है, जो उसके गोल्स है, उसको आप पूरा कैसे करें वो समझ में आएगा। सो आप अगर अपने बच्चे को समझना चाहते हैं, इफ यू वांट दैट you just understand your child, so for that only one thing you have to do to enroll in this course, and this course price is 1999. If you will see, if you will divide this 1999 price in 21 days, 99 rupees per day, only 99 rupees per day. So if we will see 99 rupees when we are going for some junk food, that time when we are buying some junk food, that cost is more than 99. So here you are giving your child something best in 199. So parent think, if you are interested for this course, I had message the link in WhatsApp group also, in your chat also. You can go to that link. You can purchase this thing. And this whole thing, again I am telling you, this whole thing you will get in 1999. And the cost for per day is only 99. And I think this is not more, parents. To understand your child, understand your child feelings, to understand, to achieve the goal of your child, you only have to pay 99 rupees per day. And that much we can do it for our child. I again tell you why I made this course such a cheap, why this cost is so low. Because I want to solve the problem of every child. I really want that child should get the bond from the parents. I really don't want any child will suffer, which I suffer when I am young. When I am a child, that time I suffered many times. I had whatever things I learned by my own. So I want the parents should give this whole thing, this whole idea to their child. They help their child. So for that, only you have to do to enroll here. Just आपको ये कोर्स enroll करना है और कुछ नहीं. So parents, आपके पास आज पूरा दिन है. आप सोचिए, आप ये कोर्स को देखिए, आप इसमें जो चीजें मिलने वाली है, जो बोनसेस मिलने वाले हैं,
वो सारे बोनसेस। आप अगर DMIT टेस्ट का प्राइस ही बाहर देखते हैं तो आपको 7,000 8,000 के आसपास का ये DMIT टेस्ट पड़ता है। इफ यू वांट यू कैन चेक इट। मैं आपको वो भी फ्री में दे रही हूँ। ये सारी चीजें और ये जो नॉलेज आपको मिलने वाला है, अगेन आई एम टेलिंग यू, सब में एक्टिविटीज है। सो आपका बच्चा ये सब करने के लिए रेडी होगा। चाइल्ड इज गोइंग टू लव दिस होल थिंग बिकॉज बच्चा खेल की बहुत सारी चीजें सीखता है। सो यू ओनली हैव टू डू whatever the activity I am telling, that activity with your child, nothing else. Just try to do this whole thing. One parent asked me what is DMIT. So parent DMIT is one type of test जिसमें आपकी फिंगरप्रिंट से आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा डेवलप है, ये सब चीजें पता चलती है। आपकी कौन से स्किल्स डेवलप है या नहीं डेवलप, कम है, ये सारी चीजें आपको पता चलती है। आपकी लर्निंग स्टाइल कौन सी होगी। कई बार हम लोग अपने बच्चे को अलग तरीके से पढ़ा रहे होते हैं जो कि उसे सूट नहीं होती, हमने उसकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट कर दी होती है। सो हाउ टू टीच अवर चाइल्ड इन हिज कंफर्टेबल जोन, दैट वी आर गोइंग टू नो इन DMIT टेस्ट। So this whole thing you will get in one triple line only. So parents, just think, whatever things you are going to get, आपको ये सारी चीजें, आपको अपने बच्चे की लाइफ टाइम प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा है। आप जस्ट सोच के देखिए पेरेंट्स, हम रोज भगवान से प्रे करते हैं that please God, my child understand me or I understand my child problem. For that, the God told you, do it as you want. Now you have to do the things. बस आप ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज है, ये जब आप अपने बच्चे के साथ करेंगे, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। Yes, Mr. Rajesh, you had paid. Perfect. Welcome to our group. Ma'am, I am seeing some problem. Okay, not the issue. आपके लिए आप WhatsApp ग्रुप में भी ये मैसेज है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप WhatsApp चैट कर सकते हैं। Okay, Gayatri जी, welcome to my course. She is paid. Okay, Prashant, welcome to my course. And believe me, you are going to learn best thing. Aishwarya, welcome to my course. आपने अपने बच्चे को समझने के लिए जो एक स्टेप उठाया है, and you are going to see the change in your child. And again I am telling, please पे करने से पहले मैं आपको एक चीज बोल देना चाहती हूँ, if you are ready to play with your child, if you are ready to do the activity with your child, then only pay. Otherwise please don't pay, because I'm not going to give you the lectures. I'm not interested to give you the lectures. If you are ready to do activities, then only pay. So whatever problem you are facing, you can WhatsApp me. Yes, Shabutta, you are paid. Very good. Welcome to my course. So parents, here I am ending my session. If any doubt left, you can ask me. You can WhatsApp me. I'm going to give you the whole answer. So see you. Take care and think about this.